વેલકમ બેક. બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલની મોટી જાહેરાત. 2 દિવસ પછી હું સીએમ પદેથી રાજીનામું આપીશ. અરવિંદ કેજરીવાલે કરી રાજીનામું આપવાની જાહેરાત. તો આ એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલનો મોટો નિર્ણય, આ મોટી જાહેરાત કરી છે. 2 દિવસ પછી હું સીએમ પદેથી રાજીનામું આપીશ. અરવિંદ કેજરીવાલે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. આપણે જણાવી દઈએ કે દિલ્હી લીકર પોલિસી કેસમાં કેજરીવાલ જેલમાં બંધ હતા. 177 દિવસ બાદ તેઓ જેલથી બહાર આવ્યા હતા. હવે તેમણે આ મોટી જાહેરાત કરી છે. 2 દિવસ બાદ સીએમ પદેથી રાજીનામું આપવાની કેજરીવાલની જાહેરાત. તો આ જાહેરાત બાદ અનેક અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે, અનેક ચર્ચાઓ તેજ થઈ ગઈ છે. રાજકારણમાં હલચલ થઈ ગઈ છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે આ મોટી જાહેરાત કરી છે. 2 દિવસ પછી હું સીએમ પદેથી રાજીનામું આપીશ. અરવિંદ કેજરીવાલે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી છે. 177 દિવસ જેલમાં રહીને હમણાં જ કેજરીવાલ બહાર આવ્યા છે. અરવિંદ કેજરીવાલે જનતાને કહ્યું કે હું તમારી અદાલતમાં આવ્યો છું. તમે નક્કી કરો કે હું ગુનેગાર છું કે ઈમાનદાર. તો કેજરીવાલ 177 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવ્યા છે. દિલ્હી લીકર પોલિસી કેસમાં તેઓ જેલમાં બંધ હતા અને હવે જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ કેજરીવાલની મોટી જાહેરાત. 2 દિવસ બાદ સીએમ પદેથી રાજીનામું આપવા માટેની જાહેરાત કરી છે અને આ જાહેરાતની સાથે જ અનેક ચર્ચાઓએ વેગ પકડી છે, અનેક અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે. રાજકારણમાં હલચલ છે. તો કેજરીવાલે જનતાને કહ્યું કે હું તમારી અદાલતમાં આવ્યો છું. હવે તમે નક્કી કરો કે હું ગુનેગાર છું કે ઈમાનદાર. તો એક તરફ જ્યાં કેજરીવાલ 177 દિવસ બાદ જેલમાંથી બહાર આવ્યા અને બહાર આવતાની સાથે જ કેજરીવાલે રાજીનામું આપવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ, આમ આદમી પાર્ટીના સંયોજક. તો કેજરીવાલે આ મોટી જાહેરાત કરી છે. 2 દિવસ પછી દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપવા માટેની કેજરીવાલની આ જાહેરાત છે. હવે શા માટે કેજરીવાલ રાજીનામું આપવા માંગે છે, એ પણ એક સૌથી મોટો સવાલ છે. जनता की अदालत में है. आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं. और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे. मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा. તો તમે સાંભળ્યું કે કેજરીવાલે શું કહ્યું. જનતાને કહ્યું કે તમે જ કહો હવે કે કેજરીવાલ ઈમાનદાર છે કે ગુનેગાર છે. 2 દિવસ પછી હું સીએમની ખુરશી પરથી રાજીનામું આપવા માટે જઈ રહ્યો છે. તો આપણી સાથે दिल्ली पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी जोड़ाया है फोन लाइन पर. रमेश जी, आपका स्वागत है जी 24 कलाक में. रमेश जी, केजरीवाल ने एक बड़ी जाहिरात कर दी है कि 2 दिन के बाद वो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहे हैं. देखो, केजरीवाल और क्रेडिबिलिटी, केजरीवाल और नैतिकता, केजरीवाल और संस्कार, केजरीवाल और बयान, इन पे कहीं मेल नहीं है केजरीवाल का. नहीं, केजरीवाल एक जानवर होता था ना, डायनासोर, जितना काटोगे उतना आगे बढ़ेगा. लाइक दिस केजरीवाल. केजरीवाल जी जो कह रहे हैं मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, अरे भाई, आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. यू कांट गो टू सीएम ऑफिस, यू कांट गो टू सेक्रेटरीट, you can't any sign in any file, you can't appointment new ministerial in your government. ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. अगर आप में नैतिकता होती, आप शीश महल में रह रहे हैं जो 54 करोड़ की लागत से आपने अपने लिए बनाया,
और शीला जब होती थी मुख्यमंत्री कहते थे कि मुख्यमंत्री को 4 कमरे के मकान की क्या जरूरत है। ये केजरीवाल को बयान कोई दिखा दे, केजरीवाल का पुराना बयान, मैं आपको भेज दूंगा वो पुराना बयान। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, ये कहा करते थे केजरीवाल कि शीला दीक्षित जी 27 कमरे का किस लिए मकान चाहिए। अब आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी कि आपको वो शीश महल बंगला छोड़ना पड़ेगा 2.5 एकड़ में जो आपने अपने लिए बनवाया है। इसीलिए केजरीवाल कहता है कि मैं गली गली में जाऊंगा। तो केजरीवाल एक बात बता दे कि आपने लीकर पॉलिसी के तहत जो लीकर के वो थे ऑनर, जो लीकर बेचने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे, उनका कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% के पीछे लॉजिक बता दे वो। और 12% आपने डायरेक्ट उनको कब लिया, कितना पैसा रिवेन्यू आपके पास आया 1 साल में। और अगर वो बढ़िया पॉलिसी थी तो आपने उसको विड्रॉ क्यों कर लिया 1 साल के बाद। ये केजरीवाल की तो वर्ड है ना सारे के सारे जी। तो इसलिए केजरीवाल की कहानी तो वो है कि राक्षसों को मरा तब समझो जब उसका दाह संस्कार हो जाए। तो राक्षसी प्रवृत्ति तो वो होती है जी रमेश जी, ऐसा क्या हुआ जब लीकर पॉलिसी केस में वो जेल में गए तब वो डटे रहे कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। फिर अभी करीबन 6 महीने वो जेल में रहे और 6 महीने के बाद वो बाहर आए हैं और अभी इन्होंने ये जाहिरात करी। तो ऐसा क्या हो गया कि अब उन्होंने इस्तीफा देने का सोच दिया? देखो, अब वो जमीन पे लोगों के बीच में जाएंगे, लोग कहेंगे आपकी ईमानदारी नैतिकता है तो आप सीएम की गाड़ी को क्यों उपयोग कर रहे हैं। आपको जेल से निकलने के बाद चाहिए था कि अगर मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, सीएम के सेक्रेटरीट में नहीं जाऊंगा, तो व्हाई यू आर यूजिंग द गवर्नमेंट गाड़ी, जो सरकारी गाड़ी है, सरकारी तेल है, उसका उपयोग केजरीवाल क्यों कर रहे हैं। नैतिकता, अगर कोई नैतिकता थी अडवाणी जी की, हवाला में उनका नाम आया, केवल LKA नाम शब्द आया डायरी में। अडवाणी जी ने कहा कि जब तक बेकसूर नहीं हो जाऊंगा नेक्स्ट डे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसको नैतिकता कहते हैं। तो केजरीवाल की नैतिकता थी तो 2 दिन बाद क्यों। केजरीवाल ने सरकारी उपयोग गाड़ी का, सरकारी बंगले का, जब आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते आप यू शुड वीकेंड द बंगला, यू शुड वीकेंड द, जब आप ऑफिस नहीं जा सकते यू शुड लीव द गाड़ी कार। ये नैतिकता होती है। इसीलिए मैं गली गली में, अब गली गली में लोग बगैर सिक्योरिटी के केजरीवाल साहब जाएं। जो पहले लोगों ने तमाचे मारे थे अब लोग 6 तमाचे मारेंगे उनके मुंह पर कि आप बोलते क्या है करते क्या है। क्रेडिबिलिटी नहीं है। आपने लोगों की वृद्धावस्था पेंशन 8-8 महीने तक नहीं दी। आप लोगों ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने के नाम से बैकडोर से उसकी टैक्स बढ़ा दिए बिजली के आप लोगों ने। तो आपकी नैतिकता कहाँ है। अब लोग मालूम है कि 200 यूनिट बिजली कहाँ है फ्री, ठीक है ना जी। बस आपने एक खरीदी नहीं। पानी आपने 950 MGD हुआ करता था जब आप मुख्यमंत्री बने दिल्ली में। दिल्ली की रिक्वायरमेंट 1300 MGD है। आज भी दिल्ली में 950 MGD पानी है। केजरीवाल ने 1 भी लीटर का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। दिल्ली में पानी, गर्मी आती है तो पानी का हाहाकार, सर्दी आती है तो सांस लेने में पोल्यूशन में लोग मरते हैं, बरसात आती है तो लोग अंडर ब्रिज के नीचे और घरों में बेसमेंटों में डूब डूब कर मर रहे हैं। तो आप ये बताएं ना केजरीवाल व्हाट यू हैव डन। तो रमेश जी, क्या लग रहा है आपको कि केजरीवाल ने अभी देखो कि वीडियो में क्या बोला है कि 2 दिन के बाद वो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं? एग्जैक्ट, वो सिंपैथी कार्ड के ही चक्कर में जा रहे होंगे कि लोग कहेंगे देखो वास्तव में ईमानदार है, ये कुर्सी छोड़ रहे हैं। लेकिन अब लोग ये भी तो पूछेंगे भाई आप 5 महीने जेल में रहे थे, एक भी फाइल पर साइन नहीं हुई, एक भी कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई, एक भी डिसीजन नहीं ले पाए, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, दिल्ली की व्यवस्था को लेकर, करप्शन को लेकर। 5 महीने पहले आपने कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी थी, लोग ये पूछेंगे ना। आज अचानक जब चुनाव आगे 2 महीने पहले, आप कुर्सी 2 महीने पहले छोड़ रहे हो। आपको कुर्सी 6 महीने पहले छोड़नी चाहिए थी जब आपके एलिगेशन लगा था और आप कहते मैं ईमानदार हूं तो तुरंत कहते मैं बेकसूर होकर बाहर आऊंगा, तब तक मैं कुर्सी पर। अब तो अगले महीने नोटिफिकेशन हो जाएगा अक्टूबर के बाद में, आपको वैसे ही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वैसे ही सरकारी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली छोड़नी पड़ेगी 30 दिन के बाद। तो अब आप ये बताएं जब आपको 1 महीने में छोड़नी है तो कब तक लोगों को मूर्ख बनाओगे। दिल्ली में गरीब जो रेहड़ी पटरी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बेचारे गांव से मजदूरी के लिए शहरों में भाई के लिए, रोजी रोटी के लिए, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये बेवकूफ कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब ये 1 महीने